میڈیا سے گفتگو اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی خوشخبری جس کا پوری قوم انتظار کر رہی تھی، آج عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پنجاب کے الیکشن کا کیس تھا اس میں فیصلہ سنا دیا ہے، اور بڑا واضح، کلیئر، تاریخی، آئینی فیصلہ ہے۔ سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو کہ ایک آئینی مسئلہ حل ہوا ہے اور آئین کی بالادستی دوبارہ سے آج ثابت ہو گئی ہے۔ عدالت نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے جس میں 30 اپریل سے الیکشن کی ڈیٹ کو شفٹ کر کے اکتوبر میں لے جایا گیا تھا، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 ممبر بینچ نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ سمیت فیڈرل حکومت کے آفیشلز ہیں، حکومت کے جو عہدیداران ہیں ان کے سمیت، سب پہ پابندی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس الیکشن میں بھرپور مدد کریں۔ اور اس سلسلے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو پیسے چاہیے 20 بلین یا 21 بلین روپیز وہ فیڈرل حکومت فراہم کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اگر اس میں انہوں نے تاخیر کی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت کے پاس واپس جائے گی اور عدالت پھر جس نے بھی نافرمانی کی حکم کی اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اسی طرح کیئر ٹیکر حکومت، پروونشل گورنمنٹ، آئی جی پولیس پنجاب، ان کو بھی حکم فرمایا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی حکم فرمایا ہے کہ جہاں جہاں سیکیورٹی کے لیے لوگ چاہیے، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے آرم فورسز کے ہوں، چاہے رینجرز کے ہوں، چاہے وہ کوئی اور لوگ ہائر کرنے پڑیں، سیکیورٹی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خاص ڈیٹ کے اندر ساری جو فیسلٹی ہے فراہم کی جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ 13 دن کی تاخیر ہو گئی تھی اس غیر قانونی، غیر آئینی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کی وجہ سے، چونکہ 13 دن کی تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے جو الیکشن پروگرام جہاں رکا تھا ادھر سے ہی شروع ہوگا اور الیکشن 13 دن کے بعد ہوں گے، یعنی کہ بجائے 30 اپریل کے وہ 14 مئی کو الیکشن ہولڈ ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی تاخیر جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس سے کلیئر، اس سے کانسٹیٹیوشنلی کلیئر فیصلہ نہیں ہو سکتا میری نظر میں۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو 5 اور 3 رکنی بینچ کی باتیں ہو رہی تھیں، عدالت نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ 5 رکنی بینچ ہی تھا، اور اس میں میجورٹی فیصلہ، مائنورٹی فیصلہ جو ہے وہ الگ ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا اور مندوخیل صاحب نے کیا، اور میجورٹی فیصلہ جو چیف جسٹس اور باقی دیگر ججرا صاحبان نے کیا وہی ویلڈ اور وہی لیگل فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا سپریم کورٹ نے۔ یہ بھی کلیئر کر دیا کہ جہاں تک جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی جس کے اندر ایک کنفیوژن تھی کہ کیا یہ والا کیس رکتا ہے کہ نہیں، اس کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس ججمنٹ کا، اس فیصلے کا اس فیصلے پہ یا اس کیس کے کارروائی پہ کوئی اثر نہیں۔ تو پھر اینڈ میں یہی کہوں گا کہ مبارک ہو، 14 کو الیکشن اب پنجاب اسمبلی میں ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ ہم پرامن کلیئر الیکشنز ہوں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا جاندار ہو کے آج پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج عدالت عظمیٰ نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا۔ آج عدالت عظمیٰ نے آئین کے تقدس کو بحال کر دیا۔ آج عدالت عظمیٰ نے ان سازشی قوتوں کو جو اس ملک میں
जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आईनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया है। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन है। ये मैं इसको कहूँगा एक वाटरशेड मोमेंट है। पाकिस्तानी कौम को आज सर फ़ख्र से उठाकर चलना है कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरूब नहीं होते, दबाव में नहीं आते, धमकियों से खौफ में मुब्तला नहीं हो जाते, अपने ज़मीर आइन के मुताबिक कानून के ताबे होते हुए वो कौम को उम्मीद देते हैं कि नहीं, अभी कुछ लोग हैं वो ज़िंदा हैं, जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन कुव्वतों को फतह हुई है जो जस्टिस कॉर्नेलियस की जो सोच थी उसके लिए उन्होंने तारीख अदवार में अलम बुलंद रखा, और आज उन लोगों को शिकस्त हुई है जो जस्टिस मुनीर के और नज़रिया ज़रूरत के पैरोकार थे। बड़ी क्लियर लाइन वाज़ेह हो गई है जमहूरी कुव्वतों में, आइनी कुव्वतों में और गैर आइनी कुव्वतों में। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान की वकला बिरादरी को, जिन्होंने भरपूर तरीके से अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस साहब का साथ दिया और काले कोट और रूल ऑफ लॉ की अजमत के लिए उन्होंने झंडा बुलंद किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने काबिल कदर वकील और सेनेटर अली ज़फ़र साहब को, जिन्होंने अपने वालिद की रिवायात के मुताबिक, जो कि पाए के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, तारीख़ में एक नया बाब रकम किया है। इंशाअल्लाह तारीख़ मेरे भाई आपको एज ए डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेगी। आपकी नामजदगी पर इनटू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुझे फ़ख्र है, और मैं इमाम इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी आँख ने आपको तलाश किया और वो मकाम दिया जिस मकाम पर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके फैसले से पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था, और आज उस मौक़िफ़ को अदालत उज़्मा ने सुरखरू कर दिया है। हमारे दिलों में आपके लिए पहले भी इज़्ज़त थी, आज उसमें इजाफा हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमरान खान साहब को, जिनका जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने उस मोटो को जो हमने मिलकर पढ़ा था, परसिवेरेंस कमांड्स सक्सेस, हम दोनों उस इदारे के तालिब इल्म हैं जिसका ये मोटो है, और इमरान खान ने साबित किया, परसिवेयर किया। उस पर कातलाना हमले हुए, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर तनकीद की गई, इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान टिका नहीं, चट्टान की तरह कायम रहा, कौम को उम्मीद दिलाता रहा, हमें हौसला दिलाता रहा। हमारे दिलों में जो खौफ था उसने खौफ का बुत तोड़ दिया, और हम जैसे लोगों को ये ताकत दी कि हम सच और हक और आइन के लिए, कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए उन वकला को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में, और उन वकला जो उन रूल ऑफ लॉ के सेमिनार में शामिल हुए, और ILF को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, शादाब जाफरी साहब को, उनकी तमाम टीम को, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कल भी एक सेमिनार मुनक़िद किया आइन की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अब मेरी गुजारिश है सियासी जमातों से, बैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, अदना कारकुन के, तहरीक इंसाफ के बैसियत वाइस चेयरमैन के, इमरान खान के नुमाइंदा के, मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। हमारी लड़ाई ज़ाती नहीं है, आपका मौक़िफ़ है, आपको अदालत ने मौका फराहम कर दिया है। अपनी क़यादत समेत आप जाएं लोगों के सामने, अपना नुक्ता नज़र रखें।
हमें भी मौका दें, हम अपना नुक्ता नज़र लोगों के सामने रखेंगे और फैसला आवाम का होगा। हमारी गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन से, आप कहते थे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जब उन्होंने मुझे मौका इनायत किया और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज उनके हाथ जो बंधे हुए थे आज वो आज़ाद हो गए। आज उनके कोई बंदिश उनके सामने नहीं है। वो वसाइल का जिक्र कर रहे थे, उनको वसाइल दस्तयाब हो गए। वो सिक्योरिटी पर्सनल का जिक्र कर रहे थे, वो दस्तयाब हो गए। आज उन पर जितने प्रेशर्स थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन प्रेशर्स से उन्हें आज़ाद कर दिया है और उन्हें ये तायीद की है, तलकीन की है कि जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है वो क्या है, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएं। इमरान खान ने ये कहा है कि मैं सबसे अफजल पाकिस्तान को रखता हूँ और पाकिस्तान की आवाम को रखता हूँ। इंशाअल्लाह इमरान खान के जितने साथी हैं वो इमरान खान के इसी अज़म को लेकर आगे चलेंगे और मैं तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तंजीमों को, पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान में बिलमूम ये गुजारिश कर रहा हूँ, अपने अपने ज़िलों में फैल जाओ, अपने अपने हलकों में फैल जाओ। आज से मंसूबाबंदी कर लो। किस लिए? इमरान खान को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए। किस लिए? एक दोबारा उस मोल्ड को तोड़कर, ब्रेक द मोल्ड एंड प्रिपेयर योरसेल्फ to be the next government of Pakistan, the next government of Punjab, इंशाअल्लाह। पंजाब में भी आपकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत होगी, क्योंकि आवाम की दिल की धड़कनें आज इमरान खान के साथ हैं। शुक्रिया। पंजाब वाली वाजी हुई है, केपीके के मामले पे आप उनके वकील हैं, टेक्निकल चीज आपसे पूछ रहा हूँ, इस मामले पे साइलेंट क्यों रही है, जबकि बजट जो है वो दोनों सूबों का कहा है कि वो रिलीज करेंगे? जी, वो उन्होंने ये कहा कि और महल दुरुस्त फैसला किया कि उनके जो वकील साहब थे उन्होंने आखिरी मिनट पे ये कहा कि मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता गवर्नर साहब को। तो अदालत ने ये कहा है कि क्योंकि वो अनरिप्रेजेंटेड हैं इसलिए उनके लिए सेपरेट पिटिशन फाइल कर दें। तो फैसला ऑब्वियसली यही होना है, फैसला यही होना है जो अभी फैसला है, लेकिन उसके लिए कार्रवाई करनी ज़रूरी है, एक पिटिशन फाइल करना ज़रूरी है और उसमें वो अपना वकील करके सामने पेश होंगे। क्या आप इसमें पिटिशन फाइल करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी। हमारे स्पीकर की पिटिशन मौजूद है, अब तो इंशाल्लाह फैसला होगा। शादी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि मुल्क में जो हालात है वो माशाल्लाह की तरफ जा रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा और बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं कहूँगा मेरा बेटा, मेरा बिलावल, मुझे याद है जो निक्कर में खेलता था, मुझे वो दिन भी याद है जब अम्मा नाराज़ होती थी तो ये कोने में खड़ा करती थी तो आंसू बहाता था, हम पहुँचते थे, मुझे याद है। मेरा बेटा, आज 4 अप्रैल है, आज तुम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मना रहे हो जिसने इस मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियाँ दे रहा है। वो आइन दे रहा था, ये मार्शल लॉ की धमकियाँ दे रहा है। यही फ़र्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं उसमें नून है, पीपल्स पार्टी है, टीएलपी है, जमात इस्लामी है, जितनी भी हैं, जो पंजाब के इलेक्शन का क्योंकि ऐलान हो चुका है, इलेक्शन में वो उन्होंने कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं। उन्हें बैठकर एक ऐसा ज़ाब्ता इखलाक मुरतब करना चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन के लिए आसानी पैदा हो और शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो। और आखिरी बात मैं एक और करता चलूँ, मैं आज बड़े अदब से पंजाब की सिविल सर्विस से और पुलिस से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अब आपकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन का इनकाद, पार्टीजन मत होइए और आपने न्यूट्रल रहना है, गैर जानिबदार रहना है। न्यूट्रल के लफ्ज़ से मुझे डर लगता है, गैर जानिबदार आपने रहना है। अगर आपने जानिबदारी की, पाकिस्तान की आवाम
और तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। वो कमिश्नर्स, वो डिप्टी कमिश्नर्स जो मनपसंद तैनात किए गए हैं, आप अपने हलफ और जो आईन पाकिस्तान है उसको, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करेंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ वज़ीर आला मोहसिन नकवी से कि खुदारा अब बस कर दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने दें। जी, शाह साहब ने जो बात की उस पर मैं कहना चाह रहा था, ऐड करना चाह रहा था कि बहुत अच्छी बात की। डायलॉग के लिए हम अब भी तैयार हैं और मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छी तजवीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इलेक्शन में आप हिस्सा लें। तो थैंक यू, ये कहना आपने बहुत। फैसला आ गया और 14 मई को ही इलेक्शन का आज फैसला आया है। क्या मुज़ाकरात में एक दिन इलेक्शन की बात हो सकती है, दोबारा कोई रिव्यू कर सकते हैं? भाईजान, आपने फैसला सुन लिया, पढ़ लिया, फैसला सुन भी लिया और पढ़ भी लेंगे भी तफसीलात। 14 की तैयारी करें और आगे की गुफ्तगू करें। शाह साहब, एक साल पहले जब फैसला आया था, रात 12 बजे अदालत लगी थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लंदन में जो जस्टिस साहबान की उनकी तस्वीरों पे जूते बरसाए थे, आप उसमें माफ़रत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं? मैं देखिए, बात सुनिए। पहली बात यह है कि जब फैसला हमारे खिलाफ भी आया था, हमने जजेस को धमकी नहीं दी थी, हमने फैसले को तस्लीम किया था। ठीक है, हमने ये नहीं कहा था हम इस बेंच को नहीं मानते, हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हरगिज़ नहीं कहा था। हमें फैसला पसंद नहीं आया, बस अरे हम तस्लीम, हमने कबूल किया, नंबर 1। नंबर 2, तहरीक इंसाफ की ये तरबियत ही नहीं है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि किसी की तस्वीरों पे जूते मारे जाएं, बिल्कुल नहीं। सब इदारे मोहतरम हैं, सब जजेस मोहतरम हैं, हमारे जितने इदारे हैं मुल्क के वो मोहतरम हैं, और हम एक ऐसी जमात हैं जो रूल ऑफ लॉ की पासदारी कर रहे हैं। हम नई रिवायात डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम तब्दीली की बात कर रहे हैं। अगर हम तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हमें इस सोच को भी तब्दील करना होगा। इमरजेंसी की भी यहाँ बात हुई कुछ दिन पहले के मुल्क में इमरजेंसी के दफन हो गई, दफन हो गई, इमरजेंसी दफन, नजरिया ज़रूरत दफन, साजिशें दफन, आइन जिंदाबाद। थैंक यू। फैसल साहब बात करेंगे ज़रा सेनेटर जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान खान साहब पार्लिमानी बोर्ड पहले ही बना चुके हैं। मलिका, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान खान साहब पार्लिमानी बोर्ड पहले ही बना चुके हैं और जैसा कि शाह साहब ने अभी बताया कि हमारी अब इलेक्शन की तैयारी शुरू है। राज करेगी अब खल्के खुदा। आज जो देख फैसला रहे आया हैं है, पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, और इलेक्शन कमीशन ने जो 13 दिन थे वो ज़ाया हुए हैं। अब 14 मई को कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आज बड़ा फैसला दे दिया है कि पंजाब में इलेक्शंस कराए जाएं, और ये कहा गया है कि 20 बिलियन रुपए जो है वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को दे, और अगर ना दे तो फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा से अदालत से रुजू करे। इलेक्शन के लिए फंड्स फराम ना किए गए तो अदालत अहकाम